Hello everyone. So in this video we are going to study about Venn diagrams. So these technique of understanding sets with the help of Venn diagram was invented by a mathematician named John Venn. So what do we do here? So basically we use rectangle, which symbolizes universal set. We symbolizes circles. We use circles to symbolize sets. So universal set is symbolized by rectangle and sets are symbolized by circles. Now here you see one diagram in front of you in which you see a rectangle and there is a U written in the top left corner, top right corner of the rectangle. That means everything inside the rectangle is part of the universal set. Then there is a circle outside which there is B written. That means this whole circle, this circle is set B. And there is one more circle inside set B where there is A written. That means set A is part of set B. In this situation, we can symbolically represent as A is a subset of B. Here A is a subset of B. A is a part of set B. And both set A and B are part of universal set. Right? Like this, we can use these Venn diagrams to represent sets. Let's see some more Venn diagrams. Okay, now this Venn diagram represents union of two sets. Now what do you mean by union? See, this is the symbol of union, A union B. It looks like U, not letter U of English alphabet exactly, but it looks like that letter. This symbol is for union and it is read as A union B. A union B means it's a set of all the elements which belong either to A or B or both A and B. So you see this circles, two circles, and both are designed like this, right? Both are designed like this. That means every element which is either part of set A or part of set B or part of both the sets, which is in that middle portion which you see over here, they all belong to A union B, right? So A union B's definition, symbolical definition is shown over here. A union B is set of all elements X such that X belongs to A or X belongs to B. Now the meaning of the word or here is very significant. Or means it can be part of set A also and part of set B also. It can be any one of them. Both are allowed. X can be part of set A also and part of set B also. Both are allowed. So shaded portion which you see over here is A union B. Right? Example, set A is AEIOU, set B is ABC, and A union B is ABCEIOU. Now you don't write A two times. Although there is element A present in both set A and set B, but you write it just once. So the rule of writing set in roster form is whenever you write an element which comes in both the sets, you write it only once. Whenever you write an element which repeats itself, you write it only once. Right? Okay. Set A is a set of natural numbers, set B is a set of whole numbers, and set A union B. What will be set A union B? It will be a set of whole numbers because all natural numbers are subset of set of whole numbers. That's why their union will remain same. So for example, if I have this universal set of all real numbers, and then I have a set of whole numbers, then set of natural number will be inside the whole numbers, right? So all natural number will be inside, outside there will be just 0, right? And you can represent this situation of A union B, that is set of whole numbers union set of natural number, as shaded portion. So you can shade the whole thing, right?
Okay, sometimes the symbols like this is also used, but this is very rare. So this is union of all the set ai, where I is 1 till I is n. So you union n number of sets all together, and it is represented like this, right? Symbolically, union of ai, where I is equal to 1 till n, is a set such that set of all elements x such that x belongs to ai for at least one I, where I is greater than equal to 1 and smaller than equal to n. That is the symbolical definition of union of multiple sets, although not very important right now. Intersection of two sets. Intersection means common. Okay, A intersection B means set of all those elements which are common to two sets. A intersection B is a set of all the elements x such that x belongs to A and x belongs to B. And now there is a very important meaning of the word and. Earlier in union we used the word or means या तो A में है या तो B में है, दोनों में होगा तो चलेगा, दोनों में से किसी एक में होगा तो भी चलेगा. एंड मीन्स स्पेसिफिकली वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए वो एलिमेंट. तो अगर कोई एलिमेंट A में भी है B में भी है दोनों में है, मतलब क्या है कि वो दोनों के कॉमन पार्ट में है. तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B. Suppose set A is 2, 4, 6, 8. Set B is 1, 2, 3, 4. So 2 and 4 comes under A intersection B. ये इंटरसेक्शन का और एक सिंबल है, इसको बोलते हैं काई. काई, ओके. आई थिंक CHI उसका स्पेलिंग है, ग्रीक लेटर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंटरसेक्शन और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? A माइनस बी, मतलब A के सारे एलिमेंट्स में B के A के सारे एलिमेंट्स में से B के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो होगा डिफरेंस ऑफ A एंड B. जैसे कि यहां पे दिखाया है क्लियरली, ये वाला पार्ट डिफरेंस है, ये वाला पार्ट. इसमें एक कॉमन वाला पार्ट भी नहीं आता है, इसमें B का पार्ट तो आना ही नहीं है, और B और A में जो कॉमन है उसको भी हटा देना. ठीक है. सो A minus B is the set of all elements x such that x belongs to A but x does not belong to B. Similarly B minus A, यहाँ पे थोड़ा सा गलत डायग्राम दिखाया है उसका, ये दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए सर्कल्स, और ये वाला शेडेड पोर्शन आंसर है. सो B minus A is a set of all elements x such that x belongs to B but x does not belong to A. जिसको माइनस किया है उसको हटा देना है अपने. ठीक है. जैसे यहाँ पे सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है. एंड सेट B इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 10. तो A माइनस B क्या होगा? अब देखो मैं तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिख के बताता हूँ. नेचुरल नंबर्स जो है अप टू 10 वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. माइनस कौन से नंबर लेने? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 1, 3, 5, 7, 9. अगर ये माइनस कर दिया मैंने तो क्या बचेगा? 2, 4, 6, 8 एंड 10. राइट. तो उसने वो लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x is a even positive integer less than equal to 10 and b minus a will be null set. b minus a null set क्यों है? क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में से नेचुरल नंबर्स को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? सारे ही नंबर माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? फिर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब नल सेट हो जाएगा. ठीक है. देखो x अगर a माइनस बी से बिलोंग करता है तो x a को बिलोंग करता है लेकिन b को बिलोंग नहीं करता है. x अगर a माइनस बी को बिलोंग करता है, सॉरी ये b माइनस ए होना चाहिए यहाँ पे, b माइनस ए, तो x a को बिलोंग नहीं करता लेकिन b को बिलोंग करता है. डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब a और b डिसजॉइंट है अगर a इंटरसेक्शन b नल सेट है. अगर a इंटरसेक्शन b नल सेट है तो a और b डिसजॉइंट सेट है. ठीक है.
देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी है, प्लीज इसको नोट कर लेना. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ए फॉर ऑल. ये जो सिंबल दिख रहा है ना तुम्हें, ए उल्टा है, सॉरी उल्टा ए है और फिर यहां पे ऐसे लाइन है, इसका मतलब है फॉर ऑल. फॉर ऑल, ठीक है. null set belongs to set A for all A, for all sets A, that is null set is contained in every subset. मतलब null set सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है. एंड null set का इंटरसेक्शन अगर ले लो तुम किसी भी सेट के साथ, वो null set ही देता है. null set is disjoint from every subset. null set is disjoint from every subset. null set और किसी भी सेट में कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है. तो डिसजॉइंट सेट के बारे में था. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सपोज एक सेट है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश या फिर ए और ऊपर सी लिखते हैं ऐसे. और वो कैसे लिखेंगे हम लोग? u माइनस ए. यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए को माइनस कर दो तो जो भी बाकी का पार्ट बचेगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ये सब है. ए को छोड़ के जितना भी स्पेस बचता है उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, shaded portion. So A complement is X such that all the elements X, set of all the elements X such that X belongs to universal set but X does not belong to set A. जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 और A है 2 4 6 8 10. तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 2 4 6 8 10 निकाल दो, क्या बचेगा? 1 3 5 7 9. वो एक कॉम्प्लीमेंट है. अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो वो ए को बिलोंग नहीं करता है. अगर कोई कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को, अगर कोई सेट कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता है तो वो ए को बिलोंग करेगा ही करेगा. और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको. किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है, किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, दैट विल गिव यू यूनिवर्सल सेट. एंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज गिव यू नल सेट. रिमेंबर दीज 2 पॉइंट. ये सब नोट करते जाओ तुम, बहुत सारी चीजें हैं नोट करने की. ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस. सो व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस. यहां पे शेडेड पोर्शन दिख रहा है. मतलब अगर तुम वो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी दो पार्ट को यूनियन कर दोगे तो तुम्हें सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा और उसका सिंबल है ए ट्राइंगल बी. ए ट्राइंगल बी is set of all elements x such that x belongs to a but does not belong to b, or x belongs to b and does not belong to a. मतलब या तो ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं. ए यूनियन बी क्या होगा? चलो ए यूनियन बी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे. ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में है बी में है, कॉमन वाले एलिमेंट्स नहीं लिखना है. तो 1 2 3 4 तो रहेंगे ही, 5 6 1 2 3 4 5 6. ये हो गया ए यूनियन बी. मेरे साथ साथ प्लीज सॉल्व करो तुम लोग. ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा? ए में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 7 8 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा ए यूनियन सी. ठीक है. वैसे ही बी यूनियन सी निकालो. बी यूनियन सी 3 4 7 8 5 6 7 8. ओह सॉरी, 3 4 5 6 7 8 आएगा. 3 4 5 6 7 8, राइट. ये हो गया बी यूनियन सी. बी यूनियन डी क्या होगा? बी यूनियन डी. सो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा बी यूनियन डी. ए यूनियन बी यूनियन सी, ए को बी और सी तीनों के साथ यूनियन, तीनों को यूनियन करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आएगा, रिपीट नहीं करना है. ए यूनियन बी यूनियन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आएगा.
और बी यूनियन सी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10 ओरली बताया मैंने। अब तुम समझ गए होंगे कैसे यूनियन निकालना है, राइट? ये सारे आंसर से एक बार पॉज करके चेक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। A1 A2 A3 और तुम्हें क्या बोला है? फाइंड यूनियन AI एंड इंटरसेक्शन AI एज वेयर I इज 1 2 3। अच्छा, मतलब तुम्हें, मुझे लग रहा है कि इन लोग का जो मीनिंग है क्वेश्चन का, तुम्हें A1 A2 और A3 का AI के साथ यूनियन निकालना है और AI के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले A1 यूनियन AI। A1 को AI के साथ यूनियन करो, क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। A2 को AI के साथ यूनियन करो। आई थिंक यही है मीनिंग यार इसका। AI और I क्यों अलग से लिखा है सर? Where I is 1 2 3, find union of AI। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आई एम सॉरी। ये वो यूनियन ऑफ एन सेट्स वाला वो लोग बता रहे हैं, यूनियन ऑफ एन सेट्स। सो यूनियन ऑफ एन सेट्स क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें फिर से। यूनियन ऑफ ए आई का मतलब होता है A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अच्छा, आई की वैल्यूज दी है वो लोग ने 1 2 3, और AI मतलब A1 A2 A3 वो भी दिया है तुम्हें। मतलब ये तुम्हें तीनों का यूनियन करना है और तीनों का इंटरसेक्शन भी करना है। इंटरसेक्शन AI क्या होता है? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। चलो तीनों को यूनियन करते हैं पहले। क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7 आएगा क्योंकि ये सब सारे एलिमेंट्स आ गए। और इंटरसेक्शन क्या आएगा? 4 5। 4 5 सब में कॉमन है, 4 5 इंटरसेक्शन आएगा। चलो चेक करते हैं। 2 3 4 5 6 7 एंड इंटरसेक्शन है 4 5, करेक्ट है। अब समझ गए ये। सेट ए क्या है? 3 6 12 15, ये तो 3 के मल्टीपल्स लग रहे हैं। सेट बी क्या है? ये 2 के मल्टीपल्स लग रहे हैं मुझे, 4 के मल्टीपल्स लग रहे हैं। और सेट सी है 2 के मल्टीपल्स, और सेट डी है 5 के मल्टीपल्स। ए माइनस बी निकालना है। अच्छा, ए माइनस बी क्या होता है, याद है तुमको? ए माइनस बी मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को हटा के जो बचता है वो लिखना है, ठीक है? सो 3 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 12 नहीं लिख सकते क्योंकि 12 बी में है, वो हट जाएगा, तो उसको क्रॉस कर दो ऐसे, ठीक है? आई एम सॉरी, यहाँ पे क्रॉस कर दो, दोनों जगह क्रॉस कर सकते हो। 15 ए में है, लिख सकते हो। 18 लिख सकते हो। 21 लिख सकते हो क्योंकि बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो 3 6 15 18 21 एक बार चेक कर सकते हो। 3 6 15 18 21, राइट? सो ये हो गया ए माइनस बी। अच्छा, मुझे चाहिए कि तुम बी माइनस सी माइनस डी और डी माइनस सी, ये तुम खुद करोगे वीडियो पॉज करके अभी। नहीं तो वीडियो देखते रहना और आता है वो क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? डन? वीडियो पॉज करके कर लिया? ये नहीं किया वीडियो पॉज करके कर लो प्लीज, ठीक है? अब आंसर्स चेक कर लो अपने, देख लो क्या गलती किया है, नहीं किया है, सही है नहीं है। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट a be the set of all rational numbers and b is equal to x is a set of x such that x square minus 4x plus 2 is equal to 0। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे नहीं लगता कि सॉल्व होगा ये, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि a माइनस बी, राइट? सेट बिल्डर फॉर्म में ही रख सकते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में रख सकते हैं। मुझे लग रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें करके बताता हूँ। a माइनस बी, सारे रैशनल नंबर में से
अगर तुम ये जो बी वाले सेट में जो भी रैशनल नंबर्स आते हैं, अगर उनको हटा दो तो क्या बचेगा? अब जैसे तुम जानते हो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2। इसमें ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 2। लेट्स सी बी स्क्वायर माइनस 4ac आता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, याद है ये? सो बी स्क्वायर इज -4 द होल स्क्वायर, वो है 16 -4 इंटू 1 इंटू 2। सो 16 माइनस 8, दैट इज 8। मतलब ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अभी इसके रूट क्या है, एक्चुअली रैशनल नंबर है या नहीं है, उसके ऊपर से हम a माइनस बी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका रूट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। यही है ना फॉर्मूला? आई थिंक यही है। सो माइनस b, माइनस ऑफ -4 इज +4, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 2a, ठीक है? सो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। सो 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √2, ये वैल्यू है। अब 2 प्लस माइनस √2 तो रैशनल नंबर में आता ही नहीं है। 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 दोनों इरैशनल नंबर है, ठीक है? मतलब a में से अगर तुम ये b हटा भी दोगे तो कुछ भी माइनस नहीं होने वाला a में से। तो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से, कि a माइनस बी विल बी इक्वल टू a, दैट इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज q। अच्छा, b माइनस a करोगे तो क्या होगा? b है सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, उसमें से रैशनल नंबर हटाओगे तो क्या बचेगा? नल सेट, कॉमन ही नहीं है कुछ, माइनस कैसे होगा? और a इंटरसेक्शन b क्या होगा? अगर a और b को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कॉमन क्या है दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है ये, एक इरैशनल नंबर का सेट, एक रैशनल नंबर का सेट। चलो चेक करते हैं। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है और उनका आंसर a माइनस बी में क्या है? a ही है आंसर, a ही है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में से हमें 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 माइनस करोगे तो रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर माइनस थोड़ी कर सकते हो, a ही रहेगा। और उसमें b माइनस a में मैंने लिखा था, मैंने नल सेट लिखा था। एक्चुअली इरैशनल नंबर में से रैशनल नंबर जाएंगे तो भी आंसर रैशनल नंबर ही रहेगा। सो इधर आंसर तुम्हारा क्या रहेगा? बी ही रहेगा, करेक्ट। ये मेरी गलती थी, ठीक है? और ए इंटरसेक्शन बी वो नल सेट होगा डेफिनेटली, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है रैशनल और इरैशनल नंबर्स के सेट। समझ में आया? चलो ठीक है। U यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, A है 1 2, B है 3 4 5। तुम्हें A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, B कॉम्प्लीमेंट और A यूनियन B ढूंढना है। इजी है। पहले A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस A। यूनिवर्सल में से अगर 1 और 2 निकाल दूं तो क्या बचेगा? 3 4 5 6। अब B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस B, यूनिवर्सल में से B निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? 3 4 5 अगर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? 1 2 6। अब क्या ढूंढना है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? 3 4 5 6 और 1 2 6 में 6 कॉमन है। A यूनियन B तुम खुद ढूंढ सकते हो, A यूनियन B 1 2 3 4 5 है यार। चलो चेक करते हैं आंसर। 3 4 5 6 1 2 6 6, 3 4 5 6 1 2 6 6 1 2 3 4 5, सारे करेक्ट। चलो ये तुम ट्राई करो। इसमें तुम्हें A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट
और तुम्हें ये ढूंढना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तुम देखोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है 100% ए ही मिलना चाहिए। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर तुम वेन डायग्राम से समझना चाहोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। ए यूनियन बी होता है ये, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब यूनिवर्सल में से ये पूरा दोनों सर्कल को उड़ा देना है, तो क्या बचेगा? ये दोनों सर्कल का जो पार्ट है वो वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो बेसिकली इट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। आई थिंक यहाँ और कुछ हम लोग इसको बोल नहीं सकते, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। सही है, यही होगा। एक बार पॉज करो वीडियो, तुम लोग खुद ट्राई करो, आंसर निकालो एंड चेक करेंगे। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट नाउ। डन, लेट्स गो। ये सारे आंसर है, प्लीज चेक करो। ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यूनिवर्सल सेट इज अ set of all elements x such that x is a letter of English alphabets, and A is a set of all elements x such that x is a vowel in English alphabets. Find A complement। तो A complement मतलब क्या? यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब सारे लेटर्स में से वावल को हटा दोगे तो क्या बचेगा? कॉन्सोनेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट कॉन्सोनेंट्स है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अभी हमने देखा था, सेट ए मतलब वावल, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट है कॉन्सोनेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है सेट ए। बहुत इजी है, करने की भी जरूरत नहीं। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब तुम्हें खुद करना है। यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए सेट बी सेट सी सब दिए, तुम्हें क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और उसके साथ सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ढूंढना है। सी इफ यू कैन डू दिस, सी इफ यू कैन डू दिस। अब कॉम्प्लीमेंट ढूंढना तुम्हें आ गया, यूनियन ढूंढना आ गया, इंटरसेक्शन ढूंढना आ गया। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स पॉज रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, करो आराम से। डन, पक्का करो, स्क्रीन की तरफ देखो मत, अभी सॉल्व करो तो ही फायदा है, नहीं तो क्या फायदा, अभी घर पे बैठे हो फालतू में। चेक करो फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालना। ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 3 4 5 6 7 8। ए माइनस बी क्या होगा? 3 4 5 6 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 1,2। सो ए माइनस बी होगा 1,2। यूनियन बी माइनस ए, बी में से ए को सब निकाल देना है। बी में से ए के सारे एलिमेंट मतलब 3 4 5 6 अगर निकाल दिया तो क्या बचेगा? 7,8। क्या आंसर होगा? 1 2 7 8, करेक्ट। लेट्स चेक, करेक्ट, ठीक है। सो दैट वाज बी पार्ट, वेरी सिंपल पार्ट। वेन डायग्राम्स पढ़ा हमने, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, बहुत कुछ देखा। नोट्स ले लो इसकी और फिर इसको मैं तुम्हें भेजता हूँ एग्जाम्पल, ये सारे कर लो और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पे जाएंगे। ये सेट, ये थोड़ा लंबा चैप्टर लग रहा है क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर से ना थोड़ा स्पीड आ जाएगी हमारी, और फिजिक्स भी हम शुरू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।